भगवद गीता श्लोका 18 चैप्टर 10। विस्तारेणात्मनो योगम विस्तारेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि भूय भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् शृण्वतो। शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? ओके, मैं पढ़ता हूँ। ओ जनार्दन, अगेन प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल द मिस्टिक power of your opulences. I am never satiated in hearing about you. For the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. Purport: a similar statement was made to Sut Goswami by Rishi of Naimi Sharanya, headed by Shaunak. That statement is, Vayam tu na vitripyama uttam shloka vikrame yach shrinvatam rasagyanam swadu swadu pade pade. One can never be satiated even though one continuously hears the transcendental pastimes of Krishna, who is glorified by excellent prayers. Those who have entered into a transcendental relationship with Krishna relish at every step the description of pastimes of the Lord. Srimad Bhagavatam 1.1.19. Thus Arjuna is interested in hearing about Krishna and specifically how he remains as the all-pervading Supreme Lord. So, in this particular shloka, Arjun is telling Krishna, O Janardhan, please describe your mystic opulences in detail, mystic power in detail. And this is the nature of a devotee. A devotee is always wanting to hear and enjoying and relishing hearing about Krishna. You see, there are so many different kinds of events happening all over the world. Sometimes concerts are happening, sometimes sports match is happening, sometimes some political rally is happening, and you will see hundreds and thousands of people going there. They will engage in hearing from the respective people, whether it's a musician or a singer or a political person, or watching a match and listening to the commentary. They will have those propensities of hearing from all those sources. But for a devotee, it's different. A devotee likes to hear about Krishna and likes to hear from Krishna and likes to hear what was spoken by Krishna and likes the glorification of the Lord, likes to know more and more about the Lord. So this is the difference between a devotee and ordinary person. Ordinary person actually don't have such taste. Their taste is more into hearing all sorts of other things. And we have so many hours, 24 hours in a day. But we say we have no time for God, we have no time for Krishna. Even if we sometimes come out and give 5, 10, 20 minutes, अब बहुत हो गया भाई, हमें लगता है बहुत हो गया, ऐसे हो जाता है हमारा. तो ये बहुत शर्म की बात है एक्चुअली हमारे लिए, कि हमारी सोसाइटी में बाकी सारी चीजों को तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी जाती. तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप मुझे डिस्क्राइब कीजिए, आप मुझे बताइए अपने बारे में डिटेल में, आपकी शक्तियों के बारे में, आपके ऑपुलेंसेस के बारे में. मैं कभी भी थकता नहीं हूं इससे. और प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं भागवतम में से. भागवतम में से नेमी शरण्या जो जगह है जहां पे कई सारे ऋषि एकत्रित हुए थे एक्चुअली. और वो सब ऋषि क्या करने के लिए एकत्रित हुए थे? एक ही मकसद से हुए थे
कि तो इसलिए उनका मकसद क्या था, जन कल्याण करना, बाकी लोगों का कल्याण कैसे किया जाए अच्छे से, उसको उस हेतु से वो एकत्रित हुए थे। और 1000 साल उन्होंने वहां यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद वो चाहते थे कि पता लगे कि सबसे उच्च कोटि का कल्याण क्या हो सकता है लोगों के लिए। और इस भावना से जब वो यज्ञ कर रहे थे तो सूत गोस्वामी वहां पे आए, और सूत गोस्वामी जो थे उनको ऋषि सारे ऋषियों ने सवाल पूछे, जिनके लीडर थे शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि ने सवाल पूछे सब ऋषियों की तरफ से, और सूत गोस्वामी ने उनका जवाब दिया। और उस दौरान शुरू शुरू में उन्होंने ये बोला, उन्होंने क्या बोला कि हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते भगवान के बारे में सुनने में। हमारी जो एपेटाइट है, हंगर है भगवान के बारे में सुनने के लिए, वो अनंत है। आप जितना भी भगवान के बारे में बोलोगे, हमें बहुत ज्यादा उससे आनंद मिलेगा। तो ये है एडवांस डिवोटी के लक्षण। अर्जुन भी यही कह रहे हैं। और वहां पे जो निमिषारण्य सूत गोस्वामी, निमिषारण्य में जो सूत गोस्वामी से सुन रहे थे सेजेस, वो भी यही कह रहे थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि Arjun is interested in hearing about Krishna and specifically how he remains as the all pervading supreme lord. Specific question क्या है अर्जुन का, मेरे को आपके बारे में सुनना है कि कैसे आप सारे के सारे सृष्टि में विद्यमान हो। ओके, कौन पढ़ेगा लास्ट पैराग्राफ? I can read. हाँ पढ़ो। Now, as far as Amritam nectar is concerned, any narration or statement concerning Krishna is just like nectar, and this nectar can be perceived by practical experience. Modern stories, fiction, and histories are different from the transcendental pastimes of the Lord, in that one will tire of hearing mundane stories, but one never tires of hearing about Krishna. It is for this reason only that the history of the whole universe is replete with reference of the pastimes of the incarnations of Godhead. The Puranas are histories of bygone ages that relate the pastimes of the various incarnations of the Lord. In this way, the reading matter remains forever fresh despite repeated readings. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शास्त्र हैं, जो भगवान के बारे में कही गई बातें हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो अमृत के समान है। वो अमृत के समान है। और जैसे अमृत का को लेने से क्या होता है, अमृत को लेने से कोई बता सकता है क्या होता है अमृत से? प्योर हो जाते हैं प्रभु जी हम, बिल्कुल। तो अमृत, मृत मतलब मर जाना, अमर हो जाते हैं, अमर। हाँ, मृत मतलब मर जाना, और अमृत मतलब जो मरे ना। तो जो मरे ना मीन्स बहुत लंबी लाइफ हो जाती है, और ऑप्युलेंस, ब्यूटी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अमृत जो है, नेक्टर, वो ऐसा है। लेकिन एक्चुअली ये तो सिर्फ मटेरियल लेवल पे आपको थोड़ा सा वो दे सकता है, क्योंकि अंत में शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ी बड़ी लाइफ हो जाए या बहुत बड़ी लाइफ हो जाए अमृत लेने से, जैसे देवी देवताओं की हो जाती है, तो वो हाईएस्ट लेवल नहीं है एक्चुअली। हाईएस्ट लेवल क्या है कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जाके एक ऐसे जगह जाना जहां पे पूरा नेक्टर ही हो, अमृत ही हो। अमृत मतलब कि वहां पे जाने के बाद फिर कोई मृत्यु का कभी देखना ना पड़े शक्ल। तो ऐसी क्या चीज है? ऐसा है भगवान के बारे में सुनना। और ये नेक्टेरियन भी बहुत है, आनंद भी बहुत दिलाता है, और साथ ही साथ हमारे को सारे के सारे मटीरियलिस्टिक, जो इस भौतिक जगत के कॉन्शियसनेस है, उससे बाहर लेके जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजें हमारे अटेंशन लेके जाती हैं, जो कि कई बार स्टोरीज के रूप में हो सकती हैं, जो कहानियां सुनते हैं बच्चे।
कोई स्पेक्यूलेटिव फिक्शन हो सकती है, साइंस फिक्शन वगैरह देखते हैं, या इतिहास की कोई अलग अलग बातें होती हैं जो कि भगवान से कनेक्शन नहीं है। ऐसी सब चीजें जो हैं वो लोगों का ध्यान इधर उधर भटका सकती हैं। लेकिन अगर यही चीज शास्त्रों के थ्रू ली जाए, जो एक्चुअली ट्रुथ है और जो सही मायने में एक्चुअली हुई हैं, और उनके बारे में अगर कोई सुने और उसको इंटरेस्ट ले, तो आपका जो प्रोपेंसिटी है एंटरटेन होने की वो तो पूरी होगी होगी, लेकिन आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। स्पिरिचुअल बेनिफिट इतना मिलेगा आपको कि आपको वो ये मृत शरीर से अमृत शरीर की तरफ ले जाएगा। उसका मतलब क्या है? मटीरियल लेवल से स्पिरिचुअल लेवल में ले जाएगा। तो ये जो पुराण इतिहास, ये अलग अलग जो शास्त्रों में दिए गए हैं, ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम इसको पढ़ के अच्छे से अपने मन में भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकें, और ये सब चीजें जो इन किताबों में है, ये हमारे हृदय में भी फ्रेश रह सके, जैसे हम बार 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 उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट श्लोक 10.19 अब कृष्णा बताने वाले हैं, तो प्लीज रिपीट कीजिए। श्री भगवान वाचा, श्री भगवानुवाच हंत ते कथयिष्यामि, हंत ते तते कथयिष्यामि कथयिष्यामि देव्या हि आत्मविभूतया, देव्या हि दिव्या हि आत्मविभूतया आत्मविभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठा, प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य मे, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। विस्तरस्य मे। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? प्रभु जी मैं पढ़ दूं? पढ़िए प्लीज। The translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The Supreme Personality of Godhead said, "Yes, I will tell you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent. O Arjuna, for my opulence is limitless." हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो अर्जुन बार बार पूछ रहे हैं कि ये क्या है आपकी मिस्टिक ऑपुलेंसेस, इसका मेरे को बारे में बताइए थोड़ा। तो कृष्णा कह रहे हैं हाँ जरूर अवश्य मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी जो ये सारी शक्तियां हैं, ऑपुलेंसेस हैं, ये योग ऐश्वर्य है भगवान का, ये अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी सी जस्ट एक ग्लिम्स मात्र के लिए बताता हूँ। तो पर्पट कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? Hare Krishna, I can do. हाँ आप पढ़िए प्लीज। कौन वॉलंटियर कर रहा था? Prabhuji, I can read. हाँ पढ़िए। Purport. It is not possible to comprehend the greatness of Krishna and his opulences. The senses of the individual soul are limited and do not permit him to understand the totality of Krishna's affair. Still, the devotees try to understand Krishna, but not on the principle that they will be able to understand Krishna fully at any specific time or in any state of life. Rather, the very topic of Krishna are so relishable that they appear to the devotees as nectar. Thus, the devotees enjoy them. In discussing Krishna's opulences and his diverse energies, the pure devotees take transcendental pleasure. Therefore, they want to hear and discuss them. Krishna knows that the living entities do not understand the extent of his opulences. He therefore agrees to state only the principal manifestation of his different energies. The word pradhanata, principle, is very important because we can understand only a few of the principal details of the Supreme Lord. For his features are unlimited. It is not possible to understand them all. And vibhuti are used in this verse refers
to the opulences by which he controls the whole manifestation. In the Amar Kosha dictionary, it is stated that Vibhuti indicates as exceptional opulence. The impersonalist or the pantheist cannot understand the exceptional opulences of the Supreme Lord, nor the manifestation of his divine energies, both in the material world and in the spiritual world. His energies are distributed in every variety of manifestation. Now Krishna is describing what can be directly perceived by the common man. Thus, part of his variegated energies is described in this way. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद पर्पट में बता रहे हैं कि भगवान को पूरी तरह से जान लेना या कॉम्प्रिहेंड करना भगवान की ग्रेटनेस और इसके ऑपुलेंसेस, ये हमारे लिए एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है. ठीक है. सेंसेस जो है इंडिविजुअल सोल के, वो बहुत लिमिटेड है, और माइंड भी जो बड़ा लिमिटेड है, हमारा कॉन्सेप्शन हमारी बड़ी लिमिटेड है. तो भगवान तो अनलिमिटेड इतने ज्यादा भगवान के ऑपुलेंसेस के एक व्यक्ति के लिए भगवान को जानना ये पॉसिबल है नहीं एक्चुअली. लेकिन भगवान की कृपा से भक्त जो है वो कोशिश करते हैं, और भगवान भक्तों के डिजायर को फुलफिल करके अपने आप को रिवील कराते हैं. और जो मोटी मोटी चीजें, जानने लायक चीजें, वो भगवान रिवील कराते हैं ताकि भक्त जो है भगवान के साथ कनेक्ट हो सके. तो यहाँ पे इसलिए बोला गया प्रिंसिपल, जो प्रमुख चीजें हैं, प्राधान्यता है, वो सारी भगवान यहाँ पे बताएंगे. तो यहाँ पे देखा, but not on the principle that they will be able to understand Krishna fully at any specific time or in any state of life. मगर ये नहीं है कि पूरी तरह से अब मैं भगवान को जान चुका. जैसे कई बार क्या होता है कि कई रिलीजन्स में ये है कि अगर आप कुछ भी ऐसा कह दो जो उनके रिलीजन या उनकी बिलीफ सिस्टम से अलग है, तो वो इमीडिएटली आपको कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. इसका मतलब ये है कि वो एक क्लेम करते हैं, उनके मन में कहीं ऐसा है कि हम भगवान को पूरी तरह से जानते हैं. लेकिन एक्चुअली आप वैदिक कल्चर में देखोगे तो वैदिक कल्चर में ये बोला जाता है कि भगवान जो है वो अपने आप को रिवील कर सकते हैं टू द एक्सटेंट जैसे हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं. कहते हैं ना, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे. जैसे जैसे भगवान की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से भगवान बुद्धि देते हैं. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे. तो शास्त्रों में जो दिया है वो तो है सही, शास्त्रों में कई चीजें दी हैं, लेकिन पूरी तरह से भगवान को जानना ये बस का नहीं है हमारे. तो कई लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि जो उनके रिलीजन या बिलीफ सिस्टम या छोटी सी उनके पास जो किताब है उसमें नहीं है, वो एक्चुअली हो ही नहीं सकता भगवान के बारे में. लेकिन वो तो लिमिट कर रहे हो आप भगवान को. भगवान तो अनलिमिटेड है, भगवान के ऑपुलेंसेस तो अनंत है. तो मैं बताया, इन डिस्कसिंग कृष्णा's opulences and his diverse energies, the pure devotees take transcendental pleasure. और इसको डिस्कस करने में, सुनने में और समझने में भक्त को जो है वो काफी आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान के बारे में बात करें. तो इसलिए यहाँ पे वो डिस्कस करना चाहते हैं डिवोटीज, और अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, सुनना चाहते हैं. फिर आगे बता रहे हैं, कृष्णा knows that living entities do not understand the extent of his opulences. He therefore agrees to state only the principal manifestation. तो कृष्णा इसलिए प्रधान चीजें बता रहे हैं, जो मैनिफेस्ट, जो प्रिंसिपल वाली हैं, मेन है, वो बता रहे हैं. और फिर यहाँ बताया गया है विभूति, and vibhuti as used in this verse refers to the opulences by which he controls the whole manifestation. तो डिक्शनरी, जो संस्कृत की डिक्शनरी, उसमें क्या दिया गया है, विभूति इंडिकेट्स एन एक्सेप्शनल ऑपुलेंस. तो भगवान की जो एक्सेप्शनल ऑपुलेंस है वो यहाँ पे बताई गई है. इम्पर्सनलिस्ट और पैंथीस्ट. अब ये पैंथीस्ट क्या होते हैं? कभी किसी ने सुना है वर्ड पैंथीस्ट? कौन बताएगा इसका मतलब?
बिना गूगल किए हुए। अच्छा, किसने एथीस्ट सुना है? Yes. एथीस्ट तो सुना है प्रभु जी। क्या होता है एथीस्ट? जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, ओके। नास्तिक होते जो। अच्छा, और मोनोथीस्ट? जो जो दोनों को मानते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं, या जो एक एक ही को सिंगल को मानते हैं बस, सिंगल को मानते होंगे प्रभु जी। जैसे हाँ, जैसे जीसस हो गया, अल्लाह हो गया, ऐसे। हाँ, अच्छा, फिर पॉलीथीस्ट क्या होता है? जो मल्टीपल मांगते हैं प्रभु जी, कुछ भी मान लेते हैं, मतलब जो उनकी कन्वीनियंट के हिसाब से। अच्छा, तो आप क्या हो? हम तो हिंदू है प्रभु जी, अपने ही धर्म को मानते हैं। नहीं, आप हम मोनोथीस्ट हो, आप एथीस्ट हो, मोनोथीस्ट हो, पॉलीथीस्ट हो? प्रभु जी वैसे अगर देखा जाए, जो डेफिनेशन मैंने दी उस हिसाब से तो मोनोथीस्ट हुए ना, कि हम एक ही को मानते हैं। अच्छा, तो फिर ये पैनथीस्ट क्या होगा? पता प्रभु जी, आपने गूगल करने को मना कर दिया। आप लोगों ने सही बताया, एथीस्ट मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते, पॉलीथीस्ट वो सोचते हैं कई सारे भगवान हैं, मोनोथीस्ट मतलब एक ही भगवान है, और पैनथीस्ट मीन वो कहता है हर कोई भगवान है, हर जगह हर चीज भगवान है, पैन हर चीज। तो इम्पर्सनलिस्ट या पैनथीस्ट जो लोग हैं वो एक्सेप्शनल ऑपुलेंसेस जो भगवान के उसको समझ नहीं सकते, कैनॉट अंडरस्टैंड द एक्सेप्शनल ऑपुलेंसेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड नॉर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ हिज डिवाइन एनर्जी। और भगवान की शक्तियों को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो तो कहते हैं हर एक कोई भगवान है, आप भी, मैं भी, ये भी, हर चीज भी भगवान है, कुछ भी। Both in the material world and the spiritual world, his energies are distributed in every variety and manifestation. Now Krishna is describing what can be directly perceived by common man. Thus, part of his variegated energy is described in this way. तो एक्चुअली मोनोथीस्ट जो है, हिंदुइज्म भी एक्चुअली मोनोथीस्टिक है, लेकिन लगता है कईयों के कि पॉलीथीस्टिक है, क्योंकि बड़े सारे भगवान है, लेकिन एक्चुअली हिंदू रिलीजन वेदास में ये दिया गया है कि भगवान एक ही। वदंती तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् ज्ञानमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, के अलग अलग लेवल ऑफ रियलाइजेशन में अलग अलग एक्सटेंट तक आप भगवान को समझ सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भगवान अलग हो गए। और कई सारे डेमी गॉड, देवी देवता जो हैं, उनको भी कभी कभार भगवान का वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन वो इसलिए उनको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मान के। जैसे कभी कभार कोई आए पुलिस वाला, तो उसको भी वही रिस्पेक्ट देते हो आप जो आप गवर्नमेंट के हायर ऑफिसर को दोगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पूरी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप नहीं दोगे ठीक से तो आपको फिर फाइन भी हो जाएगा कि आपने बदतमीजी की। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है। वही वो अपना यूनिफॉर्म में ना हो और नॉर्मल अपने शॉर्ट्स में और टी शर्ट में खेलने गया हुआ है वो, अब उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, अब नहीं आप उसको कुछ रिस्पेक्ट दोगे, क्योंकि अब तो वो ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह है। लेकिन वही अगर यूनिफॉर्म में होगा तो उसका हिसाब किताब चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से जो रिस्पेक्ट देते हैं वो एक्चुअली देते हैं, इसलिए नहीं देते हम डेमी गॉड्स को कि वो भगवान है, वो इसलिए रिस्पेक्ट देनी है क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान की जो विभूतियां हैं, अलग अलग ऑपुलेंसेस है, वो अब भगवान शेयर करने वाले हैं, ताकि हम डायरेक्टली मटेरियल वर्ल्ड में जो चीजें देखते हैं, जो हम संपर्क में आते हैं, उसमें समझ सकें कि कैसे भगवान की जो विभूतियां हैं, वो भगवान की शक्तियां हैं, उनमें ऑपुलेंसेस हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? तो हमने पढ़ा एथीस्ट, मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट एंड पैनथीस्ट। और मोनोथीस्ट जो है वो है एक्चुअली सारे ज्यादातर रिलीजन्स इंक्लूडिंग हिंदुइज्म। ओके, कौन पढ़ेगा ये?
आप रिपीट कीजिए मेरे पीछे पहले श्लोका, फिर ट्रांसलेशन पे पढ़ेंगे, तब आप वॉलंटियर कर सकते हैं। अहम आत्मा गुणाकेश, अहम आत्मा अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतस्य सर्वभूतस्य स्थिता, सर्वभूतस्य स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च अहम आदेश मध्यम च भूतानां अंत एव च। अनंत एव च। भूतानां च। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पैराग्राफ पढ़। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्लीज आप। Translation. I am the super soul, O Arjun, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. Purport. In this verse, Arjun is addressed as Kudakesa, which means one who has conquered the darkness of sleep. For those who are sleeping in the darkness of ignorance, it is not possible to understand how Supreme Personality of Godhead manifests himself in various ways in the material and spiritual worlds. Thus, this address by Krishna to Arjun is significant because Arjun is above such darkness. The personality of Godhead agrees to describe his various opulences. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये इंपॉर्टेंट है वर्ड्स यहाँ पे। गुड़ाकेशा, गुड़ाकेशा मीन्स क्या मतलब होता है गुड़ाकेशा का? Who conquered the darkness of sleep. तो जनरली ज्यादातर लोग नींद को वश में नहीं कर सकते। कोई है आप में से नींद को वश में कर ले? Yes, I am one of them. नींद को वश में कर रहे हो आपने? नहीं वश में नहीं होती मैं वो नहीं होती। हाँ, वो तो सब ज्यादातर लोगों के साथ हमारे साथ यही कहानी है कि होती नहीं हमारी। मगर अर्जुन जो था उसका ऐसा नहीं था, उसने नींद को वश में किया हुआ था। और सिर्फ नींद, उसकी शरीर की नींद नहीं, मगर वो भी जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस की भी। तो इसलिए अर्जुन को यहाँ एड्रेस किया है गुड़ाकेश के, जो ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं अर्जुन, निद्रा में नहीं है, स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों तरीके से। और भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में हूँ, सीटेड इन हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग। और भगवान जो है गाइड कर रहे हैं, आप परमात्मा की तरह सबके हृदय में। और पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन जो है वो गुड़ाकेश है, और भगवान की जो ज्ञान है उसको कंपेयर किया है नॉलेज से, या रियल नॉलेज, ट्रू नॉलेज से। और इग्नोरेंस से हमें को दूर लेके जाती है। तो क्योंकि अर्जुन जो है उसको ये नॉलेज एक्चुअली है, अभी तो ये सिचुएशन क्रिएट की ना जिससे उसको रिवाइव कर सके नॉलेज, तभी अर्जुन को एकदम 1-2 घंटे के लिए अंदर क्रैश कोर्स में ही पूरा सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन हम लोग तो कितने साल लगा देते हैं भगवत गीता, फिर भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। अर्जुन के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्चुअली गुड़ाकेश था, वो इग्नोरेंस के परे था और पूर्ण रूप से नॉलेज में था। लेकिन योग माया के प्रभाव से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जब वो भी बिविल्डर हो गया, जब वो भी कंफ्यूज हो गया, और फिर कृष्णा ने उसको बाहर कंफ्यूजन से निकाला। आगे पढ़ेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? एक्चुअली लास्ट के दोनों पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद एक साथ डिस्कस करेंगे। I can continue. हाँ, कंटिन्यू करो प्लीज। Krishna first informs Arjun that he is the soul of the entire cosmic manifestation by dint of his primary expansion. Before the material creation, the Supreme Lord, by his plenary expansion, accepts the Purusa incarnation, and from him everything begins. Therefore, he is Atma, and Atma, the soul of the Mahat Tattva, the universal elements. The total material energy is not
not the cause of the creation. Actually, the Mahavishnu enters into the Mahat Tattva, the total material energy. He is the soul. When Mahavishnu enters into the manifested universes, he again manifests himself as the super soul in each and every entity. We have experienced that the personal body of the living entity exists due to the presence of the spiritual spark. Without the existence of the spiritual spark, the body cannot develop. Similarly, the material manifestation cannot develop unless the Supreme Soul Krishna enters. As stated in the Subala Upanishad, Prakriti Adi Sarva Bhutantar Yami Sarva Sesi Cha Narayana. The Supreme Personality of Godhead is existing as the Super Soul in all manifested universes. The three Purusa avatars are described in Srimad Bhagavatam. They are also described in the Narad Panchantara, one of the Satvata Tantras. Vishnu's two Trini Rupani Purusakhi Ani Ato Vidu. The Supreme Personality of Godhead manifests three features as Karanodakasai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, and Sirodakasai Vishnu. In this material manifestation, the Mahavishnu or Karanadakasai Vishnu is described in the Brahma Samhita 5.47. Yah Karan Narnava Jale Bhajati Sama Yoga Nidram. The Supreme Lord Krishna, the causes of all causes, lies down in the cosmic ocean as Mahavishnu. Therefore, the Supreme Personality of Godhead is the beginning of this universe, the maintainer of the universal manifestations, and the end of all energy. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे कृष्णा इन्फॉर्म कर रहे हैं अर्जुन को, क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं? that he is the soul of entire cosmic manifestation by dint of his primary expansion. तो यहाँ कृष्णा क्या बोल रहे हैं? कृष्णा बोल रहे हैं I am the beginning, the middle and the end of all beings. तो जब सृष्टि ये बनती है तो जैसे एक यूनिवर्स आया एग्जिस्टेंस में, तो ईच यूनिवर्स में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विद्यमान होते हैं। और कहाँ से रहा है यूनिवर्स? महाविष्णु की बॉडी में से आ रहा है। तो ये जो महाविष्णु है उसको कारणोदक्षाई विष्णु भी उनको कहा जाता है। कारण है वो जो यूनिवर्स आ रहा है उसके। तो 3 अलग अलग विष्णु हो गए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पूरी यूनिवर्स है उसके अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु आए, तो वो एक तरह से सुपर सोल या सोल ऑफ द होल यूनिवर्स है। ही इज आत्मा, द सोल ऑफ द यूनिवर्सल एलिमेंट्स। तो एक्चुअली शुरू में क्या हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि महत्त्व जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ये मैटर है, ये सब इंग्रेडिएंट फॉर्म में होता है, जिसको अपने में शक्ति नहीं है कि वो पूरा सब कुछ क्रिएट कर सके। अभी जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये अपने आप ही सारी की सारी सृष्टि जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस अपने आप, कोई बाहर से कुछ आया नहीं। लेकिन एक्चुअली ये गलत है। शास्त्र बता रहे हैं कि एक्चुअली इस महत्त्व के अंदर भगवान महाविष्णु जो है वो एंटर हुए हैं। लिखा है ना, एक्चुअली द महाविष्णु एंटर्स इनटू द महत्त्व, द टोटल मटेरियल एनर्जी, and he is the soul. When Mahavishnu enters the material manifestation, he again manifests himself as super soul in each and every entity. When we have experienced the personal body of the living entity exists due to the presence of spiritual spark. तो महाविष्णु महातत्व में गए और वहां से उनके शरीर से कई सारे प्लैनेट्स आए, सॉरी यूनिवर्सेस आए, और उन यूनिवर्सेस में वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में गए। तो महातत्व के
कि आत्मा जो है या एक सेंटर या जो करता धरता है सोल है, वहां पे वो महाविष्णु है। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो यूनिवर्स के एक तरह से सुपर सोल है। और फिर हर कण में, हर जर्रे जर्रे में उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो विद्यमान हुए हैं। और हर जीवा के साथ, हर आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में भी विष्णु विद्यमान हुए हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु। When Mahavishnu enters the manifested universe, he again manifests himself as a super soul. Each and every entity we have experienced, the personal body of the living entity exists due to the presence of spiritual spark. Without the existence of spiritual spark, the body cannot develop. तो शरीर जो है वो डेवलप नहीं कर पाता। Similarly, the material manifestation cannot develop unless the supreme soul Krishna enters. As stated in the Subala Upanishad, Prakriti Adi Sarvabhutantara Yami Sarva Sheshi Chanarayana. The Supreme Personality of Godhead is existing as a super soul in all manifested universes. तो सारे की सारी सृष्टि में, सारे यूनिवर्सेस में सुपर सोल है। अब ये 3 पुरुष इनकारनेशन लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे फिर से बताएं स्पेसिफिकली कि भागवतम में जो डिस्क्रिप्शन है और नारद पंचरात्रा में और उसमें जो डिस्क्राइब किया हुआ है क्या कि 3 फॉर्म्स है। कारणोदक्षाय विष्णु जो कि महाविष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो महाविष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु डिस्क्राइब किए ब्रह्म संहिता में। या कारणवा जले भजति संयोग निद्राम। The Supreme Lord Krishna, the cause of all causes, lies down in the cosmic ocean as Mahavishnu. Therefore, the Supreme Personality of Godhead is the beginning of this universe, the maintainer of the universal manifestations, and the end of all energy. तो यहाँ पे प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया परपट में कि कैसे भगवान बिगिनिंग है, मिडिल है और एंड है। जो ये भगवान ने एक लाइन बोली है, इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन होगा सुन के कि आचार्य ने क्या बोला है, जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद ने डिस्क्राइब किया। और डिटेल में जाना है तो इससे श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, वो और डिटेल में बताती है इसका। बट अभी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज इनफ। इसको भी अगर हम रिपीटेडली पढ़ेंगे तो ये और क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आज का हमारा टाइम हो गया, यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? 10.20 तक कर लिया हमने। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो आगे के श्लोकों में थोड़े हम हो सकता है फास्ट भी जाएं, बट आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।